kids, welcome to grade 10 geography class. In today's class we're going to discuss chapter number 6 which is manufacturing industries and आज का जो सेशन है वो है सेशन नंबर 3. So जो इंडस्ट्रीज हैं उनका क्लासिफिकेशन हम लोग देख रहे थे. So is now एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज जिसमें आते हैं कॉटन, जूट, सिल्क, woolen textiles, sugar and edible oil etc. Industry are based on agricultural raw material. तो ये जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं उसमें ये सारी चीज़ें जो कॉटन है, जूट है, सिल्क है, ये सारी चीज़ें जो है उसके अंदर आती हैं. एंड ये जो इंडस्ट्री है वो बेस्ड है एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल के ऊपर. तो जो रॉ मटेरियल हमें एग्रीकल्चर से मिलता है वो सारा यूज़ होता है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में. Textile industry. The textile industry occupies unique position in the Indian economy because it contributes significantly to industrial production, employment generation, the second largest after agriculture, and foreign exchange earnings about 24.6%. तो textile industry जो है that is a very big industry इंडिया में. जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री वो ऑक्यूपाई करता है एक यूनिक पोजीशन इंडियन इकोनॉमी में बिकॉज वो कंट्रीब्यूट करता है जो हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है उसमें वो सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करता है अबाउट 14%. एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है उससे तो वो 35 मिलियन जो पर्सनस हैं उनको डायरेक्टली वो एम्प्लॉय करता है एंड दैट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट आफ्टर एग्रीकल्चर. बिकॉज आप लोगों को याद होगा बच्चों हमारे यहाँ जो फर्स्ट जो एम्प्लॉयमेंट में है सेक्टर वो होगा हमारे यहाँ एग्रीकल्चर सेक्टर. तो एंड फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स जो हैं वो आती हैं उससे 24.6%. सो वी कैन सी कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज़ अ वेरी बिग इंडस्ट्री इंडिया में. उसके जो इंडियन इकोनॉमी है उसमें इट हैज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन. Cotton textile. In ancient India, cotton textiles were produced with hand spinning and handloom weaving techniques. So we know India में for the ancient times से India का जो cotton है that is so we know cotton जो है India का since ancient times हमारा जो cotton है that is very good quality and that is why हम लोग बहुत सारा जो cotton है we export it to a lot of different countries. As we have discussed in some other chapters कि even if you go now to US, Canada, if you buy वहाँ पे if you buy cotton, so वहाँ पे भी you will see कि cotton a lot of it is made in India because the cotton of our India is quite good. उसकी जो quality है वो बहुत अच्छी है and that is why जो cotton है वो यहाँ का बहुत export होता है. So since ancient India cotton textiles जो हैं वो produce होते थे with hand spinning and handloom weaving technique से वो use होते थे. So fiber cotton है raw material उससे होता था and spinning से yarn बनता है, weaving, knitting, fabric, dyeing and furnishing होता है and garment manufacturing होता है end में. Today, there are nearly 1,600 cotton and human-made fiber textiles mills in the country. About 80% of these are in the private sector and the rest in the public and cooperative sectors. So, आज जो है today there are nearly 1,600 cotton and human-made fiber textile mills हैं वो country में है and about 60% of these जो है वो प्राइवेट सेक्टर में है. सो अलॉट हम लोग देख सकते हैं कि काफ़ी सारे जो है वो प्राइवेट सेक्टर्स में है एंड जो रेस्ट है वो पब्लिक एंड कोऑपरेटिव सेक्टर्स में है. सो दिस इज हाउ वी हैव ऑल नियरली 1,600 कॉटन एंड ह्यूमन मेड जो फाइबर टेक्सटाइल मिल्स हैं वो हैं हमारी कंट्री में. India has the second largest installed capacity of spindles in the world, next to China at around 34 million. And this data is from 2003 to 2004. Since the mid-80s, the spinning sector has received a lot of attention. So India में we have the second largest installed जो capacity of spindles है वो वर्ल्ड में वी आर द सेकेंड लार्जेस्ट जो है वहाँ पे हैं हम लोग उस प्लेस पे एंड जो फर्स्ट है वो चाइना है एंड एट अराउंड 34 मिलियन. एंड ये जो डाटा है दैट इज टेकन एट 2003-2004 का डाटा है. एंड सिंस द मिड 80s जो है जो स्पिनिंग सेक्टर है वो उसने काफ़ी उसको अटेंशन मिली है स्पिनिंग सेक्टर को. सो थिंग्स हैव बीन मूविंग वेल इन द स्पिनिंग सेक्टर. Jute textiles. India is the largest producer of raw jute
and jute goods and stands at second place as an exporter after Bangladesh. There are about 70 jute mills in India. So if we talk about jute का जो production है, jute textiles की if we talk about that, तो इंडिया जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है रॉ जूट का, एंड जूट के जो गुड्स हैं वहाँ पे वी स्टैंड एट, हमारा सेकेंड पोजीशन है, सो वी कम वर्ल्ड में हम सेकेंड पोजीशन पे आते हैं एज एन एक्सपोर्टर आफ्टर बांग्लादेश. तो बांग्लादेश जो है वो फर्स्ट जो है उनका प्लेस फर्स्ट है बिकॉज दे आर द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर व्हेन इट कम्स टू जूट टेक्सटाइल्स. एंड हमारी कंट्री में देयर आर अबाउट 70 जूट मिल्स हैं जो इंडिया में हैं. Most of these are located in West Bengal, mainly along the banks of the Hooghly River in a narrow belt 98 km long and 3 km wide. So most of these जो हैं वो located हैं West Bengal में, mainly along the banks, जो Hooghly River है उसके banks में mostly located हैं, and एक narrow belt जो है वहाँ पे mostly ये सारे located हैं जो which is 98 km long and 3 km wide है. So most of these are located in वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है ये सारी जो जूट टेक्सटाइल है वो. Sugar industry, India stands second as a world producer of sugar, but occupies the first place in the production of gur and khansari. So sugar industry में इंडिया जो है, इंडिया सेकंड आता है एज अ वर्ल्ड प्रोड्यूसर ऑफ शुगर. तो शुगर किससे बनता है बच्चों? शुगर बनता है शुगर केन से. तो हमारे यहाँ शुगर केन जो है वो बहुत होता है, तो दैट इज वाई हम लोग वर्ल्ड में सेकंड प्लेस पे हैं एज अ शुगर प्रोड्यूसर. बट वी ऑक्यूपाई द फर्स्ट प्लेस. जो गुड़ एंड खानसारी जो होती है उसमें वी आर एट द फर्स्ट प्लेस. तो गुड़ बच्चों को आप लोगों को पता होगा, गुड़ इज जैगरी, वो हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी होती है, एंड वो हम लोग क्या मोस्टली यूज होती है, एंड दैट इज हाउ वी आर एट द फर्स्ट प्लेस इफ वी सी द प्रोडक्शन ऑफ गुड़ एंड खानसारी. सो इंडिया जो है इफ वी सी शुगर तो वी आर एट द सेकेंड प्लेस, बट अगर हम लोग बात करते हैं गुड़ एंड खानसारी की तो we are at the first place. There are over 460 sugar mills in the country, spread over Uttar Pradesh, Bihar, Maharashtra, Karnataka, Tamil Nadu, Andhra Pradesh and Gujarat, along with Punjab, Haryana and Madhya Pradesh. So there are about 460 sugar mills हैं. उतनी हमारे यहाँ शुगर मिल्स हैं पूरे कंट्री में अगर हम लोग देखें, एंड वो देर एट डिफरेंट जो हमारे स्टेट्स हैं वहाँ पे हैं, नॉट एट द वन प्लेस. तो जो सारे स्टेट्स हैं उसमें है उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, there are some in Andhra Pradesh and Gujarat, along with there are some also in Punjab, Haryana and Madhya Pradesh. So this is how जो शुगर मिल्स हैं देर अलग-अलग स्टेट्स में इस तरीके से बटे हुए हैं. तो ऑलमोस्ट एवरीवेयर इफ वी सी अ लॉट ऑफ स्टेट्स में शुगर मिल्स हैं, एंड जो ऑल ओवर शुगर मिल्स इफ वी टॉक अबाउट, so there are over 460 sugar mills. Major challenges include the seasonal nature of the industry, old and inefficient methods of production, transport delay in reaching cane to factories, and the need to maximize the use of baggage. तो मेजर जो challenges हैं शुगर इंडस्ट्रीज के, शुगर इंडस्ट्री में बहुत सारे challenges रहते हैं, बट तो मेजर जो हैं वो है कि ये जो इंडस्ट्री है वो सीजनल इंडस्ट्री है. तो केन जब केन का सीजन होगा शुगर केन का, तो उस टाइम ये जो शुगर मिल्स हैं वो काम करते हैं, एंड आफ्टर दैट दे डोंट हैव दैट मच ऑफ वर्क. तो मोस्टली जो फर्स्ट जो उनका एक चैलेंज है दैट इज सीजनल नेचर ऑफ द इंडस्ट्री, एंड उसके बाद उतना इन पे ध्यान नहीं दिया जाता. जो इनकी फैक्ट्रीज हैं, जो प्रोडक्शन के मेथड्स हैं वो ओल्ड है, इनएफिशिएंट है, एंड उसके बाद शुगर केन जो है फैक्ट्रीज तक पहुंचने में लेट होता है, तो ट्रांसपोर्ट से उनको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, एंड ये सारी चीज़ें जो हैं उनको अगर ठीक कर लिया जाए तो शुगर इंडस्ट्री बहुत अच्छे से डेवलप कर सकती है. बट देर आर सम मेजर चैलेंजेस दैट वी जस्ट टॉक्ड अबाउट. So that's all we have discussed in this session about किस तरीके से जूट टेक्सटाइल्स है एंड शुगर के बारे में, so all that cotton textile के बारे में. So that's all we have discussed in this session. Thank you.